The soundtrack for the stock market has been changing quite a bit recently. From the bulls playing the Heartbreak Hotel songs to the bears taking out the Nagada in anticipation that the market is going to fall. And the tune has changed once again. So what's the playlist for the new Samvat? That's the question. So why not ask an investor who never misses a note? With me today is Vijay Kedia, noted investor, a musical investor who needs absolutely no introduction. Vijay bhai, great to have you with us here. Thank you very much for your time. थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले हम सब की तरफ से सीएनबीसी फैमिली की तरफ से आपको, आपके परिवार को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रशांत। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। यूजुअली वी आर द वंस हु इनवाइट विजय भाई टू आवर स्टूडियोज, बट ही इज बीन जनरस इनफ टू ओपन हिज होम and allow all of us here. So we're very pleased to be here. Now home has become beautiful because you have turned it into a studio. We've done very little. Vijay, before I start, I want to, I promised viewers it's going to be musical, next 30 minutes. Let's begin with something which is close to your heart, a prayer or a chant or something which really kind of, inspires you every day. Anything comes to your mind? You see, basically, if you say about religious and spiritualism, so I follow spiritualism. Of course, I'm religious person, but not that I'm going to temple every day and all. But I believe in spiritualism. And while talking to, I remember one, you can say song or bhajan or whatever it is, that which comes to my mind quite often, that हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. And there is a quote of also mine, very similar to this, that KYS, know yourself first. Correct. So win yourself first. Correct. That's the first battle, but the most important one. Yes, exactly. Which one needs to. Yeah. Before we talk about the Samvat and what lies ahead, let's actually recap what has been the biggest learning for you from the Samvat which has gone past. I mean, the one behind us now. I think there are so many learnings, Prashant, but one biggest learning or observation or whatever you call it, of course, we learn by observing things. What I have understood in this market, and this I had made a quote also for this, that influence of FIIs in this market is receding. Now it is no more important issue because FIs is selling, left, right, and center. But retail investors are taking over the market. So their influence is no more there in this market. This is the biggest learning. Earlier every day we used to talk about FIs. Their 1 rupee of selling used to have an impact of 80 rupees, for example. So that is the biggest learning, that don't be dependent and don't look what FIs are doing. So that is the, I think, biggest comfort. आपके जैसे दिग्गज इन्वेस्टर जो पुराने मार्केट में हैं, उनसे भी मैं कई बार सुन चुका हूँ, वो बोलते हैं जो मर्जी आ जाए मार्केट घटता ही नहीं. मतलब हमने I think we've seen 6,000-7,000 crores of selling daily, but the market has been very resilient, right? And that is largely due to the local buying which has come in. 1.5 लाख करोड़ का माल बेचा उन्होंने. 1.5 लाख करोड़ सुन के ऐसे लगता था उनका 500 करोड़ 50,000 करोड़ का इम्पैक्ट करता था मार्केट को. उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया वहाँ पे, और एफआई ने ले लिया उनको सुपड़ा साफ. तो एफआई की इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गई है, करेक्ट? तो इस पे कुछ सुनाइए. आपने कुछ लिखा है जो कि आप जो सॉन्ग्स जो हैं वो दे से पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, बट आई थिंक सॉन्ग्स आर आल्सो इक्वली पावरफुल इफ नॉट मोर. कुछ सुनाइए आपने जो लिखा है. हाँ, मैंने एक गाना लिखा है. इस गाने का अंतरा ये है जो इसी बात को करके बताता है इसको, और कि एफआई के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11. फोकट में ये माल फूंकते इनके बाप का क्या है जाता, जो भी इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता, मैं तो मर गया मम्मा, मैं तो मर गया मम्मा. आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल बिल्कुल पते की बात है और एक बहुत ही म्यूजिकल तरह से. जो एसआईपी का फ्लो है विजय भाई, वो अब $2 बिलियन महीने का $2 बिलियन आ रहा है. तो आपके हिसाब से ये और बढ़ेगा? यहाँ से हम कहाँ पे हैं, मतलब एक्सट्रीम पे हैं, पीक पे हैं, कि अभी शुरुआत है? किधर पीक पे भाई? 16,000 करोड़ रुपया महीने का आप आता है, 30 दिन महीने में होते हैं. 500 करोड़ रुपया डेली का आता है मोटा मोटी. आप देखो शेयर बाजार के समंदर में 500 करोड़ रुपया ड्रॉप भी नहीं है. वो हम लोगों ने, चूंकि ये नई शुरुआत हुई है, ठीक है, साल 1.5 साल पहले या 2-3 साल पहले 7-8 हज़ार करोड़ ही होगा, अभी ये 16,000 करोड़ है. मेरे को ऐसे लगता है कि ये इतना बड़ा एक फैशन और ट्रेंड और ये इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन हो रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 16,000 करोड़ रुपए डेली का आएगा. इसमें 5 साल लगे, 7 साल लगे, ये मेरे को नहीं मालूम है.
500 करोड़ रुपया क्या है यार, कुछ भी नहीं है 500 करोड़ रुपया, अभी तो ये शुरुआत है भाई ये। लेकिन जो चेंज हुआ है कोविड की वजह से हुआ है। पीपल स्टेड एट होम, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और पैसा बना लोगों का। और एक बात ये भी बोलते हैं लोग कि करेक्शन नहीं आया है कोई बड़ा, जो धक्का लगता है और आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने पैसा बनाया है, काफ़ी आपकी मेहनत और स्किल है, बट बाजार ने भी साथ दिया है, तो एक वो धक्का नहीं लगा है, तो वो यू थिंक उससे फ़र्क पड़ेगा? जब भी वो धक्का तो आना है, वो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये सिप वाला जो ये मामला आ रहा है ये कोई कोविड के कारण आया है। ऑफ कोर्स जब एक दिशा में ट्रेन चलती है, एक दिशा में कोई चीज़ अगर चलती है एक ट्रेंड के अंदर में, तो हर चीज़ उसको सहायता करती है और आगे बढ़ने में, ठीक है। क्योंकि कोविड के बिना भी तो 10,000 12,000 करोड़ का मार्केट अपना आता था, 10,000 का फिगर कोविड के पहले भी आता था। तो ये ऐसा नहीं कि खाली कोविड के कारण बढ़ा, ये बड़ा मेरे ख्याल से डेमोग्राफी के कारण। ये जो डेमोग्राफी की जो बातें जो हमारे इकोनॉमिस्ट करते हैं और सब जो फॉरेन वाले करते हैं और इंडियन म्यूचुअल फंड के मैनेजर करते हैं कि क्या 3.5 करोड़ अकाउंट है आज के दिन भी, जो जैसा सुनते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। और ये जो यूथ जो आ रहा है इनको, ये इनकी जो एस्पिरेशन है, जो हम बातें करते हैं एस्पिरेशन, आप बोलते हो 2,000 2,500 करोड़ का जब पर कैपिटा वो जीडीपी इनकम अगर क्रॉस करती है तो उसके बाद में वाइट गुड्स की सेल बढ़ जाती है, कंज्यूमर की सेल बढ़ जाती है। यार भाई, शेयर बाजार के सिप से बड़ा म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर से बड़ा वाइट गुड्स और क्या हो सकता है, आप मेरे को बताओ। इससे बड़ा ट्रेंड क्या हो सकता है कि पहले आप अपनी सुरक्षा को रखोगे भाई, पहले अपना सेविंग्स करोगे। हमारे तो इंडियन इकोनॉमी पूरी हजारों 10,000 50,000 सालों से सेविंग्स के ऊपर भी टिकी हुई है। तो ये जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इतने आ रहे हैं, इतनी स्कीमें आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे फंड मैनेजर आ रहे हैं, इतना आप लोग का टीवी चैनल सब इसको जिस तरह से एक्सपोज कर रहे हो, इन लोग एक्सपोज इन द सेंस अच्छी वे में जो बता रहे हो, इससे लोगों में एक ट्रेंड आ रहा है कि हाँ भाई। और ये हर बार ये तो इस बोल कर मेरे को नहीं लगता कोविड ने एक सहायता दी होगी, नहीं होता तो भी ये होना था। तो ये एक कारवां स्पेस पे ना होता, बट होता, मतलब वो ट्रेंड ऑफ कोर्स होता, वो कुछ नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आने के साथ सब पैसा कमाते ही हैं, यू नो। तो इस बोलकर इसमें रिशफल भी होते रहता है, वो आते भी रहते हैं, जाते रहते हैं। तो एक एसआईपी मुझे याद है, आपने बड़ा मजेदार एक लिखा था, कुछ 2-3 लाइन सुना दीजिए। एसआईपी जो इन्फ्लो आ रहा है। हाँ, सिप पे मैंने गाना लिखा था और वो ये था, सिप सिप करके मैंने कितनी ये पूंजी जुटाई, हाथ लगी पूंजी तो घर में भी खुशहाली छाई, खुशियाँ हाथ आई तो चेंज हुआ मेरा पूरा जीवन, टूटा ट्रेडिंग का ऐसा भरम अब ना करूं। दोनों बातें, ट्रेडिंग का भरम भी टूटा और एसआईपी, दोनों चीजें। क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग नए नए आते हैं ना, उनको सिप का तो लोगों को कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है भाई। उनको लगता है कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरने का नहीं है, उनको घड़े से बूंद बूंद भरने का है। उनको प्रॉब्लम ही है यहाँ पे, वो घड़ा लाकर बूंद उठाने की चेष्टा करते हैं। Correct. सिप तुमको बोलता है तू बूंद बूंद से पर डाल और तेरा घड़ा भरेगा, तो वो घड़े से उनको बूंद उठानी है। तो क्या करेंगे, वो आगे ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर ऑप्शन की मैं बातें कर रहा हूँ। वो F&O आप करेंगे, तो F&O अगर करोगे तो आपका यही होगा कि आप 2 में कमाओगे, तीसरे के अंदर में आउट हो जाओगे यहाँ पर। इसी बोलकर सेबी बोलती है कि 90% लोग पैसा खोते हैं। मैं सोचता हूँ 99% पैसा खोते हैं, खाली ब्रोकर कमाते हैं। और या जो आप जो चार्जेस देते हो, सेबी चार्जेस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सर्विस टैक्स, ब्रोकरेज वक्त, ये सब वो सब हुए। लेकिन जो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा है वो ऑप्शंस की वजह से, जो कुछ फिगर्स हैं, मतलब बिल्कुल अस्टाउंडिंग फिगर्स हैं। ऑप्शंस मार्केट जो है वो मेरे ख्याल से 100x है फ्यूचर मार्केट के। और ऑफ कोर्स कैश तो कहीं नहीं है, मतलब उसके इनके मुकाबले। तो जो कल्चर है वो एक तरह से वहाँ पे भी जा रहा है, तो वो ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी कल्चर बट इट्स गोइंग ऑन इन रॉन्ग वे ना। आई डोंट नो हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आर देयर इन F&O segments, maybe 200 300, I don't remember how many scripts are there. So what volume you are talking about, that volumes are created only in that F&O scripts. Correct. No? That is not getting created in mid cap and small cap. Correct. They are still illiquid. Correct. You go to sell 5,000 shares in any small cap, it will be 20% down circuit. Correct. You go to buy, it will be 20% up circuit. So whom does it बेनिफिटिंग, ये बेनिफिट तो कोई किसको हो रहा है, ये समझने वाली बात है ना। आप ब्रोकर्स को ही हो रहा है या जो उनके इंटरमीडिएटरीज है जो उनको हो रहा है। इससे मार्केट को क्या वॉल्यूम हो रहा है, इसको मार्केट को क्या फर्क। आप बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट होती है, अरे वो शेयर्स ऑलरेडी लिक्विड है यार। तू रिलायंस के अंदर में फ्यूचर में करके लिक्विडिटी क्रिएट करोगे क्या? आपको क्या एक दिन में 50 लाख शेयर लेने बेचने हैं क्या रिलायंस के अंदर में? तो ये बड़ा मिथ है जो लोग बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। मेरे ख्याल से मिथ है। और लिक्विडिटी, यू आर क्रिएटिंग लिक्विडिटी एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज हैज टू बी अंडरस्टूड भाई।
तुम 4 आदमी को मार कर खुद अगर शहीद हो रहे हो इन द सेंस को अपने आप को समझा रहे हो तो उसका क्या वैल्यू हो गया भाई? इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी। ब्रेक के बाद आते हैं, बातें जारी रखते हैं। लीजिए एक ब्रेक, सी ऑन द अदर साइड। Welcome back. We are sitting down with Mr. Vijay Kedia, noted investor in his home on the occasion, of course, of Diwali. Mr. Kedia, great to have you with us here once again. एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बाजार यहाँ कैसा लग रहा है? हम एक थोड़ा सा करेक्शन आया 5-6-7% का, स्मॉल कैप वगैरह थोड़े ज़्यादा गिरे, लेकिन अब वापस संभल गया मार्केट। क्या व्यू क्या है यहाँ से? I think when we are talking about market, then we are talking about a lot of things. You know, the entire ocean we are talking about. And जहाँ तक आपका बात है कि ये इंडेक्स चाहे 5% 7% गिरा होगा, which most of the part I think it might have recovered also in last week something. But small caps, many small caps are down by 30%, 20 to 40% small caps and mid caps are down. I think it is a good sign so far market is concerned, because there was a froth, okay, in the small cap and mid caps and all, because of this retail investors, they don't understand, just they want to put their money and buy anything which they had been recommended. वो बोले मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया, मज़ा आ गया। तो मेरा गाना भी है। So this is what was happening in this market. So I think this euphoria is settling down, but I don't think that it has settled down completely. This is my personal view. Actually, विजय भाई, स्मॉल कैप इंडेक्स, मैं मजाक में बोलता हूँ वैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली हैज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इन द वर्ल्ड, बट हाफ मजाक बोलता हूँ बिकॉज हाफ ट्रू भी है वो बात। वो 1% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब वो 7% गिरा सबसे ज़्यादा और सबसे क्विकेस्ट तरीके से वापस अपने हाई पे आ चुका है। तो मतलब स्टॉक्स अभी भी वहाँ पे होंगे नहीं गिरे हुए, लेकिन इंडेक्स वापस अपने हाई पे है। तो उसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से शेयर जब गिरे और वापस जो इंडेक्स ऊपर में आया, तो कौन से शेयर वापस ऊपर में आए, सेम शेयर्स ऊपर में आए हैं कि दूसरे शेयर्स ऊपर में आए। जैसे समंदर की वेव के जैसे है ना, कि एक वेव गई दूसरी चली जाती है, फिर दूसरी वेव आती है वहाँ तक। तो ये भी स्मॉल कैप में भी ऐसा है कि वे कौन सा वापस रिकवर किया। जैसे आप डिफेंस की अगर बात करो, अगर आपको याद है कि वी हैड 1-2 महीना पहले इंटरव्यू किया था अपने लोगों ने CNBC पे ही, तो अपने डिफेंस शेयर्स की बात की थी, तो अपना व्यू ऐसा था कि इसमें फ्रॉथ है उनके अंदर में। वो 20-20, 25-25% कई शेयर्स डाउन है, सब शेयर्स नहीं डाउन है, लेकिन कई शेयर 20-20%, 25% डाउन हो गए। ऐसा नहीं है कि वो ऑल टाइम हाई के वापस अपने पास में आ गए। तो ये यहाँ पर चलता रहेगा। अगर इतना माइन्यूटली अगर देखेंगे ना, तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गेट एनी आंसर ये इस चीज़ का आपको लेकिन आपका व्यू है कि स्मॉल कैप में फ्रॉथ अब निकल रहा है, व्यू ये है कि मतलब अब जो एक्सेस है वो हो चुका है, हम नहीं हो चुका है, अभी हुआ है, अभी एक ही वेव ऐसा हुआ। मेरे को लगता है ये, मेरे को मोटा मोटी मेरे को ऐसे मार्केट थोड़ा लगता है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। एंड आई वुड बी हैप्पी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई एम होल्डिंग माई शेयर्स, बट आई थिंक दिस मार्केट इंडेक्स वाइज, आई थिंक दिस मार्केट विल कंसोलिडेट, एंड व्हेन इंडेक्स विल कंसोलिडेट ऑल दी स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स, सम नाउ मार्केट प्राइस मेरिट पे होने वाला है। मैनी स्मॉल कैप्स मिड कैप विल फॉल, मैनी विल रिकवर। नाउ अभी जो पैसे कमाने का जो टाइम था ना भाई, जो 6-8 महीने के अंदर में आप कोई भी ले लो पैसा, कोई भी स्मॉल कैप ले लो, डिफेंस के नाम पे आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अभी जैसे चंद्रयान गया तो एक कंपनी ने कुछ ऐड दिया कि मैंने तो चाय भी वहाँ पे बेचा था वहाँ पे, तो ठीक है, अभी उसके नाम पे सब गंगा में हाथ धो लेते हैं जब गंगा बहती है। तो वो मेरे को लगता है वो टाइम खत्म हो रहा है। जो इजी पैसा बनाने का टाइम था, मेरे को लगता है वो खत्म हो रहा है। ये मार्केट रेंज बाउंड होएगा और मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्टेबलाइज होएगा और मेरिट पे मार्केट आगे मूव। तो अगर इंडेक्स से बात करें, निफ्टी या फिर सेंसेक्स, क्या मतलब एक ब्रॉड क्या आपको लगता है रेंज क्या रहेगा? Again, I think it will somewhere here 5% down and 5% up. It is not going to show new high in a hurry. Even if it goes to new high, I don't think it is going to sustain, because there's so many uncertainties we are going to face in the times to come. For example, election है, फिर जनवरी से फिर चालू हो जाएगा general election, which is a big event, and it depends again. Sentiment is mostly will depend on the outcome of this state election. So although state elections and general elections are poles apart, are different. But maybe market will take a clue कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा. So there are some uncertainties in this market. So personally I'll see that. पॉलिटिक्स एक रिस्क लगता है आपको, मतलब एक कि वो नियर टर्म मतलब थोड़ा मार्केट थम जाएगा, बट कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लगता आपको? रिस्क नहीं लगता कि सपोज ऐसे जो अभी जो गवर्नमेंट है, अगर सपोज ऐसा कोई एक सिनारियो सेंटीमेंट ऐसा बनता है कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कम, देन मार्केट विल फॉल इन अ बिग वे.
Not because of that we want BJP or we want Congress and all. Market usually wants a stable government. जो गवर्नमेंट की हमको आदत पड़ गई ना 5 साल 4 साल जिसने 5 साल जिसने चलाया, मार्केट लगता है कि भाई वही आदमी हमारा वापस है. मार्केट एडजस्ट टू ऑल दिस पॉलिटिकल थिंग्स वेरी इन ए वेरी माने यूनिक वे. हमने IK गुजराल भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मार्केट तेज हो गया था, जब का कोई कंटेंडर नहीं थे. जैसे देवी गौड़ा साहब भी प्राइम मिनिस्टर बने थे. तो ये मार्केट अपनी अलग चाल है. इंडियन जो ट्रेंड है इकोनॉमी का ये अलग चाल में चल रहा है. लेकिन एक बार वो डिस्टेबल होता है ना, जो प्रेजेंट चीज़ है, तो मार्केट उसको थोड़ा सा हिल जाता है, अनसर्टेन हो जाता है. यहाँ से आपको, आप तो अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, कोई नया लिया आपने? ये पहले पूछता हूँ. जब लास्ट टाइम जब हमने बात करी नहीं कोई नया नहीं लिया. ओम इंफ्रा, ओम वो पुराना हो गया, 2-3 महीना हो गया उसको. उसके बाद कोई उसके बाद कुछ नया नहीं. अच्छा, तो क्या सेक्टर्स आपको, क्या इंफ्रा भी ठीक लगता है? हाँ, मेरे को इंफ्रा अच्छा लगता है. मेरे को लगता है ये 5-7 साल का इसमें अभी रनअप बाकी है, क्योंकि स्टोरी अभी शुरू हो रहा है. अभी इंफ्रा के अंदर में प्राइवेट कैपेक्स अभी चालू ही नहीं हो रहा है अभी, समझिए. और ये एक बार इनके पास में जो ऑर्डर आता है ना, तो दे नीड्स 4-5 ईयर्स टू एग्जीक्यूट दोज ऑर्डर्स. तो नाउ तो दे आर गेटिंग ऑर्डर्स. तो अभी तो ये लगता है 5 साल 7 साल 10 साल हो सकता है स्टोरी चले. और मेरे का एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है. मेरे को एयरलाइंस शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं. ऑल्दो पीपल हैव नेवर मेड मनी इन एयरलाइंस कंपनीज एंड ऑल, बट मेरे को ऐसे लगता है कि इंडिया के अंदर में एयरलाइंस का टाइम, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं तो लेके बैठा हूँ फिर मैं थोड़ा. आपने पहले भी इंडिगो आपको हाँ, वो मैंने लिया था, लेकिन वो कोई ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं किया. अभी आगे परफॉर्म करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं है. लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंडिया का जो अभी जो एयरलाइंस का जो है, ये एक बिगिनिंग हो रहा है. एक न्यू ईरा इन एयरलाइंस इज, आई थिंक इट्स ए बिगिनिंग. और आपका जो बड़ा बेट है वो तो अतुल ऑटो, वो तो उसमें, हाँ वो तो है ही है. वो तो वो सब वो इलेक्ट्रिफिकेशन जो आपका जो हाँ, वो इलेक्ट्रिक के हिसाब से या विजय भाई, अतुल तो हो गया आपका बड़ा विनर. अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में, और आप हमें गा के बताइए आपकी फीलिंग्स इन स्टॉक्स के बारे में. शुरू करते हैं. एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर है रेप्रो इंडिया, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है आपके बाकी स्टॉक्स के हिसाब से. क्या दिमाग में आता है? 2 लाइन. तो रेप्रो इंडिया की ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मर रहा है वो, और चला नहीं है, लेकिन आगे चलना चाहिए. बोल तो उसमें ये आ जाता है कि जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ. अरे वाह, अभी ढूंढ ही रहा हूँ कि कब आएगा वो, कब बड़ा होगा. लेकिन चलेगा, उम्मीद तो है कि चलेगा. अच्छा, अब रेप्रो से जाते हैं दूसरी एंड में, वो सेरा. हाँ, क्या आप ही बताइए अपने मुंह से, क्या मतलब रिटर्न कितने परसेंटेज, कितने 1000% रिटर्न रहे हैं इसमें? वो लकीली सेरा ने मेरे को 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया मेरे को. 16,000 टाइम्स, 16,000 टाइम्स. क्योंकि वो मेरा बेस प्राइस था समझो 30 रुपया का, ये स्प्लिट होने का बोनस के बाद में, और उसमें करीब 150-200 रुपये मेरे को डिविडेंड मिल गया मेरे को उसके. तो मेरा फ्री का शेयर है. और 1-to-1 बोनस के बाद में 8,000 का भाव था. 16,000, तो 16,000 का भाव हो गया. इसमें तो बिल्कुल एक कोई बिल्कुल पटाखे वाला गाना बनता है इस पे. उसमें सुनाइए कुछ. उसमें मेरे को याद आता है, हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती. बहुत प्यारा गाना है, मेरा भी एक ऑल टाइम फेवरेट है. हमारे घर पे भी हम बहुत बजाते हैं इसको. अतुल ऑटो, विजय भाई, इस पे क्या कुछ सुनाइए. अतुल ऑटो तो मेरी जान है भाई. हाँ, तो वही तो मतलब तो ऐसा कोई गाना होना चाहिए जो कन्वे करे फीलिंग को. तो अतुल ऑटो पे ये गाना है, हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नज़र में तू ही तू है,
प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुमसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं विजय भाई। तेजस नेटवर्क दूसरा स्टॉक है जो आपके पास है, और अगेन मल्टी बैगर है। सेरा जैसे नहीं है लेकिन और अतुल आपका जो पुराना होल्डिंग था उस ऐसे नहीं, बट वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। तो क्या इस पे आपकी आपकी फीलिंग्स बताइए। वो वर्क इन प्रोग्रेस है। पिक्चर अभी बाकी है। तो उसमें मेरे को गाना याद आता है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत बढ़िया। मेरे पास तो ये सभी गाने मिलेंगे भाई। तो ये आपके हर पोर्टफोलियो स्टॉक पे गाना जुड़ा हुआ है कि मतलब, क्योंकि मैंने आपसे 5 पूछे, आपने फटाक से 5 के बताए तो। मेरे को क्या होता है यार, मैं सब जो कोई शोक सभा में जाता हूँ ना, तो मेरे को वहाँ पे कोई म्यूजिक चलता है ना समझो, तो हर सिचुएशन में मेरे को कोई ना कोई गाना याद आ जाता है। तो अगर कोई मैं क्रिमेटोरियम में भी गया तो वहाँ भी कुछ गाना मेरे को अचानक याद आ जाएगा, मेरे को मैं अंदर अंदर गुनगुनाने लगता हूँ। तो मैं अपने आप को रोकता हूँ कि अरे भैया गाना मत गा, यहाँ पर चेहरा बना के रखने का है कि मैं तो कोई शोक सभा में आया हूँ, कैसे आया हूँ। तो ये ऐसा होता है। नहीं, लेकिन मेरे को मेरे कोई एक दूसरे मित्र हैं जो मार्केट में ही हैं, तो बोलते हैं कि बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं, फिल्म के डायलॉग्स हैं और जो गाने हैं, वो आपके स्टॉक मार्केट के हर फेज, हर मूड, हर इमोशन, हर सिचुएशन के लिए आप उसमें कर सकते हैं, आप उसको एकदम कर सकते हैं। तो मैंने दीवार पिक्चर देखी और मैं लोगों को बोलूंगा दीवार पिक्चर देखना, पुरानी पिक्चर है, उसमें देखना, उसमें एक एक डायलेक्ट आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, मैंने कॉर्पोरेट के लिए आपको बताता है, शेयर बाजार से हर चीज उसमें जुड़ती है उसके अंदर। लास्ट एक आप कुछ सुनाइएगा। आपने, मैंने काफी इंटरव्यूज देखे हैं आपके, टेड टॉक आपने एक दिया था, उसमें देखा था आपने बोला कि स्टॉक मार्केट जो है वो दैट इज योर लाइफ। कई बार आपने छोड़ा, जब आप शुरू किया था आपने वापस कैलकाटा गए, वापस आए, लेकिन छूटा नहीं। तो ये दिस इज द फर्स्ट लव एंड आई डोंट वांट टू से ओनली लव। तो क्या कुछ सुनाइए जो कि which tells us about your love for this market। तो स्टॉक मार्केट तो ठीक है, मेरे ब्लड में स्टॉक मार्केट ये लगता है मेरे को। तो उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। बहुत बढ़िया विजय भाई। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई एम श्योर दैट आवर व्यूअर्स आर एनरिच्ड एंड एंटरटेन्ड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह कन्वे कर पाते हैं इन अ म्यूजिकल फॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू डियर।